Okay, so if the distance between the soil root and the chlorophyll is large, it needs much energy and the raw material cannot diffuse easily. But in case of lower plant, it is easily possible by the diffusion process. The whatever the waters and mineral is transferred from one part of the plant to the other plant. Okay, but in such cases when the tree is very large and it needed much energy to transfer the waters and minerals, there is a special transportation is essential. Okay, a proper system of transportation is essential. Let's discuss that thing. Obviously the tree is very tall and the energy requirement from the transportation also varies according to the plant structure. ये प्लांट के स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़े थे कि जो प्लांट है वो डेड सेल्स जो है उसमें रहते हैं मैक्सिमम, ठीक है, एंड दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर फिक्स्ड और स्टेशनरी. ओके, as the plant body consists of dead cells and many tissues. Okay, plants have low energy needed and use slow transport system, as we have already studied in our class 9. Okay, in case of tall plants, distance over the transport system is also very large. Okay, diffusion process is not possible. Okay, so how this transportation occur? Okay, where do plants need a transport system? क्यों प्लांट्स को जो है अपना वाटर्स मिनरल्स एंड फूड को जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, राइट. सो लेट अस डिस्कस. ऑलवेज फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट देयर प्लांट नीड वाटर मिनरल्स सॉल्ट्स एंड अदर मटेरियल्स. ओके, एंड जो भी उसको एनर्जी चाहिए वो जो है कौन सा प्रोसेस से वो करता है प्रोड्यूस, दैट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करता है इसके प्रीवियस वीडियो पे भी हम लोग देख चुके थे. कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल. ओके, सो नेक्स्ट कम टू द xylem and phloem tissue, which is very very essential in this transportation in plants. Okay, whatever the water mineral is absorbed by the root, okay, this can only be transported through the water carrying tubes, that is known as xylem. Okay, in my screen you can easily see the xylem tissue. These are the special tissue present in the plants, xylem and phloem. यही xylem टिश्यू जो है वो क्या होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है कोई भी वाटर्स एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट. ओके, I will look on this my screen. This is in right side, you can see the xylem tissue which is responsible for the transport of waters and minerals from one part of the plant to the other part. Okay, here whatever the food that is prepared by the process of photosynthesis by using the sunlight, okay, that food is also needed to transfer from one part of the plant to the other part. Okay, so there is a special tissue which help the plants to transfer the food from leaves to the other part of the plant, that is phloem. Okay, this can only be transported by the food carrying tubes, that is known as phloem. ओके, जो वाटर्स एंड मिनरल्स वो ट्रांसफ़र होता है वो किसके ज़रिए होता है, वो जाइलम के ज़रिए होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट. और जो फूड जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्रोड्यूस हुआ इन द लीव्स वो किसके ज़रिए ट्रांसफ़र होता है, वो जो है फ्लोएम के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, जिस प्रोसेस को हम लोग जो है ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, राइट. Okay, this is the magnifying view of the xylem tissue. In xylem, tissue vessels and tracheids are the two types of transport system in plants. Okay, xylem tissue and tracheids. Okay, these are the two types of transport tissue in plants. Both vessels and tracheids consist of thick cell wall. इसका जो cell wall होता है that is completely very very thick. Okay. सो जाइलम टिश्यू में क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, जाइलम वेसल्स, टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकियड्स आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टिश्यू इन द
plants which is responsible for the transport of waters and minerals throughout the plant body. Okay, and they have thick cell wall. Okay, okay. In the movement of water, upward plants have two types of strategies. ठीक है, जब भी वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है, इट हैज़ अपवर्ड प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ, इसे दो स्ट्रेटेजी होते हैं, वो हम देखते हैं क्या क्या. ठीक है, व्हेन रूट इज कॉन्टेक्ट विद द सॉइल, जब रूट जो है सॉइल के साथ कंप्लीटली अटैच्ड है, सॉइल हैज़ मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड रूट्स हैज़ द लेस कंसंट्रेशन ऑब्वियसली. ओके, जो सॉइल में जो वाटर्स एंड मिनरल्स की मात्रा होती है वो हायर कंसंट्रेशन होती है, लेकिन जो रूट्स में होती है वो कम होती है. ठीक है, तो ऑब्वियसली जो हमने पढ़ा था डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, जब भी सब्सटेंस जो है वो क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वो मूव करता है. ठीक है, तो इन सेम यहाँ पे क्या होगा, सॉइल में अगर वाटर्स एंड मिनरल्स की मात्रा अगर ज़्यादा है, अगर मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, तो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, सॉइल से जो है रूट के अंदर होगा. ओके, लेस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पे होगा. ठीक है, जिस प्रोसेस को हम लोग ने डिफ्यूजन हम बोलते थे. ओके, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन द वाटर्स एंड मिनरल्स कैन फ्लो. ओके, इन दिस वे द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द प्लांट. Next come to phloem. Okay, phloem is responsible for carrying food material from the leaves to the other part of the plant. Okay, as we have discussed earlier, phloem is the another conducting tissue in the transport of food. Okay, it is whatever the food is prepared by the help of photosynthesis in the leaves, that is transferred from one part of the plant to the other part of the plant by the phloem. Okay, and this structure of phloem consists of conducting cells called sieve elements. ये जो sieve elements के बारे में है, ठीक है, which are very thick and circular and elongated cells you have studied in class 9 in tissue chapter. ठीक है, phloem में जो है वो sieve एलिमेंट्स जो रहते हैं, जो कि थिक होता है, सर्कुलर होता है एंड इलोंगेटेड सेल्स होता है. ठीक है, इसके बारे में आप लोग जो है क्लास 9 में ऑलरेडी टिश्यू चैप्टर में पढ़ चुके हो. ठीक है, राइट. ओके, and the food that is synthesized in the photosynthesis are soluble products like sucrose and nutrients, carbohydrates, etc., and it is transferred through the phloem in upward and downward direction to all the part of the plant. जो भी फूड जो है प्रिपेयर होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स, वो जो है ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. सभी पार्ट्स में जाता है, चाहे वो अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, सभी पार्ट्स में जाता है बाय द हेल्प ऑफ दिस फ्लोएम टिश्यू. ठीक है, ओके, एंड द फूड दैट इज सिंथेसाइज. ओके, कौन सा फूड जो है प्लांट जो है प्रोड्यूस करता है, दैट इज starch, right, that is transferred from one part of the part to the other part. Okay, and it can be done by the using the energy in the form of ATP. ओके, हमने भी पढ़ा था कि ये जो है ATP जो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, ठीक है, उसी फॉर्म में स्टोर होता है ATP मॉलिक्यूल्स में, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो प्रोड्यूस होता है. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट वट एवर द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स आर डिस्कस्ड. ठीक है, इसमें जो है तुम लोग को मेन इसमें दो चीज़ है. फर्स्ट तो हो गया जाइलम टिश्यू के बारे में एंड फ्लोएम टिश्यू के बारे में, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, जाइलम टिश्यू क्या काम करता है, ओके, फ्लोएम टिश्यू क्या काम करता है, ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है. ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि जैसे कि जो भी वाटर्स एंड मिनरल्स है वो जाइलम टिश्यू के द्वारा जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुँचता है. ठीक है, और बाकी जो है वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा जो भी फूड जो प्रोड्यूस होता है वो जो है पहुँचता है फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. तो उसके लिए जो है फ्लोएम टिश्यू जो है वो
ओके। और यहाँ पे और एक चीज़ मैंने आप लोगों को बोला था, अगर मान लो प्लांट की हाइट अगर छोटी होती है, ठीक है, तो जो भी रूट्स जो है वाटर्स एंड मिनरल्स जो भी एब्जॉर्ब करेगा वो जो है इजीली जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए जो है प्लांट्स के सभी पार्ट्स में जो है वो पहुंच सकते हैं, ठीक। क्योंकि अगर मान लो अगर हाइट अगर छोटी है, ठीक है, अगर रूट और क्लोरोफिल के बीच में अगर डिस्टेंस अगर सबसे कम है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको जो है क्या चाहिए, लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। ओके, सो दिस कैन इजीली बी सॉल्व्ड बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। But in case of tall trees, if the distance between the soil, root and the chlorophyll is large, then it needs much energy for the raw material to be transferred. Okay, so only diffusion process is not मैच ईयर। ओके, यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस आपका कोई भी मैच नहीं करेगा। इसके लिए एक कम्प्लीटली जो है अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। Okay, xylem is responsible for the absorption of waters and minerals whatever is done by the root, that is transferred from one part of the plant to the other part, and whatever the food is prepared in the surface of the leaves during the process of photosynthesis, that is transferred from one part of leaves to the other part of the plant by the process of ट्रांसलोकेशन। उस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। जिस प्रोसेस में फूड जो है एक पार्ट लीफ से जो है दूसरे पार्ट में पहुंचता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ओके ओके, एंड वन मोर थिंग इज देयर, द एब्जॉर्प्शन। ओके, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था, जस्ट मिनट, कि एब्जॉर्प्शन, ओके, दिस स्लाइड। ओके, जब भी रूट जो है कांटेक्ट होती है सॉइल में, अगर सॉइल में जो है वाटर्स एंड मिनरल्स की मात्रा है जो है सबसे ज़्यादा होती है, राइट, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स इज मच हायर एज कम्पेयर टू द रूट, तो जो फ्लो होगा वाटर्स एंड मिनरल्स का वो कहाँ से कहाँ होगा, सॉइल से जो है रूट के अंदर होगा, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ओके, ऑब्वियसली रूट में जो है वाटर्स एंड मिनरल्स की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है और रूट में जो है कम होता है, तो फ्रॉम सॉइल जो है रूट से जो है ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ये भी हमने एक्सप्लेन किया कि फ्लोएम जो है जो भी रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, ये जो है रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड, जिस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच फूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड फ्लोएम। सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट इन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम ही आप लोगों को एक्सप्लेन करना है जब भी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में पूछा जाता है। क्लियर टू एवरीवन? ओके, और यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्सप्लेन द जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू, और यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या अराइज कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। ओके, जाइलम टिश्यू में हमने पढ़ा था कि जाइलम टिश्यू में जो है कौन सा दो टिश्यू रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैरिंग वाटर्स एंड मिनरल्स, दैट इज आवर ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। ओके, इसके बारे में आप लोग को लिखना होगा। फ्लोएम टिश्यू में जो है क्या रहता है, सीव एलिमेंट्स रहते हैं विच आर वेरी थिक सर्कुलर एंड इलंगेटेड सेल्स। ओके, इसके बारे में आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है, विथ देयर डायग्राम। सो दिस आर द टॉपिक्स दैट इज इंक्लूडेड इन आवर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, और यहाँ पे ऐसा कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें नहीं है इस टॉपिक में, ओनली ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में आप लोग जो है इसी को ही जो है डिस्कस करना होगा। जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू के बारे में ही आप लोग को लिखना होगा। हाँ, मेन इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे और एक चीज़ ये हो सकता है कि जो मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया, ठीक है, जिसमें कि प्लांट का हाइट अगर स्मॉल होता है तो उसमें जो है इजीली जो है डिफ्यूजन प्रोसेस से जो है वो हो सकता है ट्रांसपोर्ट, लेकिन इन केस ऑफ अगर टॉल ट्री होता है, ठीक है, तो कोई भी अगर वाटर्स एंड मिनरल्स या फूड अगर ट्रांसफ़र होता है तो उसके लिए जो है एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इसमें
प्लांट को ज़रूरत होता है, जिसमें कि हम इसके दोनों के बारे में जो है एक्सप्लेन करेंगे. क्लियर टू एवरीवन? ओके. द क्वेश्चंस आर like what do you mean by xylem tissue, what do you mean by phloem tissue, differentiate between xylem and phloem tissue, explain the transportation system in plants. Okay, what do you mean by photosynthesis, and what are the tissue that is involved in xylem. Okay, and what is its structure, explain with neat and clean diagram. Okay, फ्लोएम की टिश्यू के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई एम गोइंग टू शेयर विद द नेक्स्ट वीडियो विथ एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग. ओके, ये ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो जाने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सक्रिएशन सिस्टम है वो हम पढ़ेंगे, एक्सक्रिएशन कैसे होता है, एंड एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो है वो ह्यूमन बीइंग के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे. ओके, बाय एवरीवन and stay at home and stay safe.